Hello students, good afternoon all. I hope so. You enjoy your Diwali vacation nicely at home and safely at home. Okay students, but now it's time to do studying. Let us study mathematics. Already we learned our chapter, that is the chapter number 6, multiplication. Okay, in this chapter we already learned how to do the multiplication of two digit numbers also. Okay, and also we learn about our tables. Okay, I hope so you already recall and recite the tables of 1 2 3 4 5 6 7 8 until table of 9. Okay students, now it's time to solve our mathematics workbook. So everyone must have to open mathematics workbook part 1 and the page number 48. Today we are going to solve our multiplication workbook chapter concept 6.1, multiply two digit numbers. First we here going to solve recall section and then we are going to solve our main examples. Let us solve some recall examples over here. So multiple choice question first. Here we do have example 1, 4 plus 4 plus 4. Already we know that multiplication is the repeated addition. So 4 3s are कितना होता है यहाँ पर 12. So 4 plus 4 plus 4, अगर हम ऐड भी करते हैं तो 4 plus 4 होता है यहाँ पर 8 and 8 plus again 4 the 12. So our answer is the 12 over here. So we must have to write down 12 over here. C is our correct option. So in the bracket we must have to write down the C. Again here कितनी बार देखना है, हमें चेक करना है 1 2 3 4 5. 5 बार 5 है यहाँ पर, तो 5 5 आर कितना होता है, यस 25. 5 plus 5 10, then 10 plus again 5 15, 15 plus again 5 20 and 20 plus again 5 25. तो यहाँ पर सिंपली कैसे करना है 1 2 3 4 5. तो 5 का टेबल हमें 5 बार बोलना है. 5 1s are 1, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. So yes, our option D is here correct option, and here we have to write down the 25 and D in this column. Okay, again here देखो 6 कितने टाइम से देखना है यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड में 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है यहाँ पर 6. तो यहाँ पर 6 का टेबल हमें 6 टाइम्स बोलना है. 6 1s are 1, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30 and 6 6s are 36. Where is our 36? Yes, our in option A there is a 36. So our answer is the 36, and here we must have to write down the option A over here. Okay students, so now let us solve the remembering and understanding section. So here multiple choice question 5 multiply by 6 ये दिया है हमें यहाँ पर. तो इसका अर्थ क्या होता है, हमें 5 को 6 टाइम्स बोलना है. 5 1s are 1, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. Okay, 5 6s are 30. Yes, कहाँ पर आया है 30? Yes, C ऑप्शन में आया है 30. So here we must have to write down the 30 30, and here we have to write down the option C is our correct option. Again we do have example number 5. Any number multiplied by 1 इज द नंबर इट सेल्फ. किसी भी नंबर को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जवाब वही नंबर आता है. सो हियर ऑप्शन आवर डी ऑप्शन इज द करेक्ट. सो हियर वी हैव टू राइट डाउन द 1 एंड हियर राइट डाउन द ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. Which is the symbol is used for multiplication? It's a so easy example over here. Yes, that cross symbol we are going to use for the symbol for multiplication. So here option B is our correct option. So here we must have to write down the option B over here. Now let us go ahead and come to the page number 49. We do have the example number 7. 7 मल्टीप्लाई बाय 8. इसका अर्थ क्या लेना है, हमें 7 के टेबल में 7 को 8 टाइम्स हमें क्या करना है, बोलना है.
7 1 जार 1 से लेकर ओके 7 7 जार 49 वी नो दैट ओके 7 8 जार 56 so our answer is the 56 so we must have to write down the 56 over here. Yes students, so now the question number 8, the number written on the right side of the this sign is called. तो जो हम नंबर क्या करते हैं राइट साइड को लिखते हैं कहाँ पर, इस पर, तो उस नंबर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. इक्वल के हम उसके राइट साइड में लिखने वाले नंबर्स को, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर. और इक्वल के राइट साइड में लिखने वाले नंबर्स को हम बोलते हैं प्रोडक्ट. क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है PRODUCT, प्रोडक्ट. ओके स्टूडेंट, सो डैश डैश इज द रिपीटेड एडिशन. Yes, our multiplication is the repeated addition. That is our chapter name is the answer over here. Multiplication is our repeated addition. So here we have to write down the multiplication is our answer. Okay, now very short answer questions. That is example 10. Is 8 3 is the same as 3 into 6? हो सकता है क्या? चलो चेक करते हैं. ठीक है, 8 1 जार 1, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24. इसका जवाब आएगा हमारा 24. लेकिन इसका कितना आता है, 3 2 जार 6. 3 को 6 टाइम्स तक बोलना है हमें. 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 16. तो ये सेम हो सकता है क्या हमारा, नहीं, नो. तो ये हमारा सेम होगा क्या, नहीं, नो. सो हियर वी मस्ट हैव टू राइट डाउन द नो. नाउ 11 नंबर एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 3. सो ये मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो 9 के टेबल को कितनी बार हमें काउंट करना है, 3 टाइम्स. 9 1 जार 1, 9 2 जार 18 and 9 3 जार 27. So our answer is the 27. Again here we have to count the 9 times. 9 1 जार 1 से लेकर 9 9 जार, yes 9 9 जार 81. So our answer is the 81. So here we must have to write down the 81. Now here find the product of 16 and 5. So here you have to do the vertical tables. Okay, vertical table हमें बनाना है. vertical table बना के हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. चलो, तो 1 10 एंड 100 प्लेस के लिए 3 बनाने हैं. अगर प्रोडक्ट आपको 1 2 3 नंबर से, तो उतने हमें क्या बनाने हैं, यहाँ पर कॉलम्स बनाने हैं 1 2 3. चलो करते हैं. किस तरह से करनी है मल्टीप्लिकेशन, यस वी ऑलरेडी नो दैट. 5 से पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 5 से 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे. 5 1 जार, तो 5 6 जार, 5 5 जार 25 एंड 5 6 जार 30. 5 का टेबल 6 टाइम्स तक बोलना है हमें. 5 1 जार 1, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30. सो 0 यहाँ पर आता है हमारा और 3 जाता है कैरी फॉरवर्ड. अगेन 5 1 जार 1, तो 5 1 जार 1, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 1 जार 5. तो 3 उसमें ऐड करेंगे. 5 + 3 होते हैं हमारे 5 6 7 8. सो आवर आंसर इज द 8. सो व्हाट इज आवर प्रोडक्ट, आवर प्रोडक्ट इज द 80. सो हियर वी कैन राइट डाउन 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट इज आवर 80. Okay, similarly we do have the example, find the product 24 multiplied by 6. So here 6 का टेबल 4 टाइम्स तक बोलना है हमें. 6 1 जार 1, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18. ओके, 6 4 जार 24. सो 4 यहाँ पर एंड 2 goes to the carry forward. 6 2 जार 12, 12 plus again 2, 12 13 14. So our answer is the 144. So here we can write down that 24
multiply by 6 is equal to 144. So okay, so now let us solve the next example, that is the long answer question, example number 15, and it's so much easy questions for you students. Write the multiplication tables of 7 and 8, and I know that you do have already the tables of 7 and 8, and also in our textbook on page number 61 there is a tables of 7 and 8, so you can easily solve that question examples over here. Okay student, now let us solve the example number 16 over here. What we have, find the following products. So here we do have 25 multiplied by 7, then 19 multiplied by 8, 23 multiplied by 6, and 12 multiplied by 9. So here any two examples I am going to solve you. Other two examples you must have to solve in your mathematics workbook. Okay students, so here I will solve the example first, and A and the D1. 7 5s are okay, 7 का टेबल हमें बोलना है 5 टाइम्स तक. 7 5s are 7 1s are 1, 7 5s are 35. Yes, so here 5 we must have to write down, and 3 goes to the carry forward. So 7 2s are 14, and 14 plus 3 14, 15, 16 and 17. So yes, our answer is the 17. So our product is the 175. Again, so example B you can easily solve. You must have to sing a table of 8 9 times, and then write down the product वंस प्लेस यहाँ पर लिखना है. हमने जो कैरी फॉरवर्ड नंबर जाता है वो ऊपर लिखना है, और बाद में उन नंबर्स को ऐड करना है. सिमिलरली आई एम गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल D1. सो यहाँ पर देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 1s are 1, 9 2s are yes 18. So 8 here, and 1 goes to the carry forward. 9 1s are 9, and 9 1s are 9, and plus 1, that is the 10. So our answer is the 108. Similarly you can solve the example B and the C over here. It's so easy students, I know that you can easily solve it. Now let us move ahead and go to the page number 51. There are 8 students in a row. How many students will be there in a 7 such a row? तो देखो रोज़ हैं, और एक रोज़ में कितने स्टूडेंट्स हैं? यस 8 स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे कितनी रोज़ हैं? 7 है. तो हमें 8 और 7 को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 8 का टेबल को 7 टाइम्स तक हमें क्या करना है? बोलना है. चलो बोलते हैं 8 1s are 1, 8 5s are 40, ओके, 8 6s are 48, okay, and 8 7s are yes 56. So what is our answer? Our answer is the 56. So how many students in a 7 such a row? So 56 students are in that 7 row. So here we can write down each row number of students is equal to 8. Okay, there are such a 7 rows. So total number of students is equal to 8 multiplied by 7, that is equal to आएगा हमारा 56 students. Okay students, so that is our answer over there. Similarly we do have the example 18. Here क्या बताया यहाँ पर आप उन्होंने देखो 9 mangoes are there, 9 mangoes are there, and 8 boxes are there. So here again you have to do the multiplication.
Okay students, so that multiplication, but you must have to do at the home. So that is for your homework part students. Okay, now let us solve the long answer questions. Example number 19. Each child carries 9 notebooks. How many notebooks will 45 children carry? तो इसलिए देखो, हर एक बच्चे के पास, हर एक स्टूडेंट के पास कितने नोटबुक्स हैं? 9 से, और यहाँ पर 45 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो सबके पास कुल मिलाकर कितने होंगे? तो ये निकालने के लिए हमें ज़रूरी होती है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। चलो फिर यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन इसका। ईच चाइल्ड कैरी इज इक्वल टू 9 नोटबुक। कितने नोटबुक्स हैं उनके पास? 9 नोटबुक्स हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल? यहाँ पर 45 हैं। तो यहाँ पर हमें करना है, सो टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स आर, हो सकती है हमारी 45 मल्टीप्लाई बाय 9। लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन हियर। 9 और 5, 9 का टेबल 9 5 जार, 9 का टेबल 5 टाइम्स 9 5 जार 45। So here 5 is there, 4 goes to the carry forward. Again 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 36 and the 4, 36, 37, 38, 39, 40. So 4 0 40. तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए? 405 नोटबुक्स आर देयर। कितने नोटबुक्स हो गए फिर यहाँ पर? 405 नोटबुक्स आर देयर। ओके स्टूडेंट्स, similarly here we do have the example for the toffee box. A toffee box has 68 toffees in it. How many toffees will be there in a 9 such a boxes? So here again you have to do the multiplication. So that examples I will give you for your homework part. You can easily solve that examples in your mathematics notebooks. So easy, no? Yes. So now let us solve some higher order thinking skill examples. That is the HOTS example. Example 21 here. Write 2 multiplication facts for 84. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स किसे कहते हैं? जब हम किसी नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिखाते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेंट को हम मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट के फॉर्मेट में क्या करते हैं? मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के फॉर्मेट में यहाँ पर क्या करना है? दिखाना है। तो यहाँ पर देखो 84 नंबर है, तो 84 नंबर्स को हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिखाना है। चलो फिर हमें समझ में आएगा। देखो, तो अगर 84 है तो 84 के नंबर को हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट में लिखना है। तो देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 84, तो किस किस के टेबल में 84 आता है? तो आपको तो पता है 12 के टेबल में आता है। यस, आता है ना 12 के टेबल में। चलो बोलो आप 12 का टेबल, तो आपको समझ में आएगा। देखो 12 के टेबल में मल्टीप्लिकेशन के आता है 12 1 जार 1, 12 2 जार, हाँ, तो ये 12 का टेबल तो आपको बहुत बड़ा होगा कि नहीं? तो ठीक है, तो देखो अगर हम इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो राइट 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर 84। तो 84 के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखता हूँ, तो ऐसे अलग अलग फैक्ट्स आप भी लिख सकते हो, जैसे कि 42 इंटू 2, 2 2 जार आएगा 4 एंड 2 4 जार 8। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर के का इस्तेमाल करके मैंने 84 जो है वो प्रोडक्ट क्या कर दिया? यहाँ पर दिखा दिया। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ओके, तो इसी तरह से हम लिख सकते 84 जो क्या था 12 के टेबल में, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7
तो सिमिलरली आप भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में अलग अलग तरीके से उसको दिखा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आप घर पे अलग अलग तरह से इसको मल्टीप्लिकेशन की फैक्ट में क्या कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दिखाना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल फ्रॉम आवर पेज नंबर 52। फ्रेम अ वर्ड प्रॉब्लम फॉर द फॉलोइंग एंड सॉलिड। तो हमें ये वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म भी करना है और उसको सॉल्व भी करना है। नंबर ऑफ एप्पल्स इन 1 कार्टन इज इक्वल टू 5 है। नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हैं, 8 है। तो यहाँ पर चलो हम फ्रेम करते हैं कि देर आर 5 एप्पल्स इन ईच कार्टन। There are such 8 carton. How many apples are there? How many apples are there in total? तो चलो ये तो बन गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो चलो इस प्रॉब्लम को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है कि कितने कार्टन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच कार्टन कितने हैं वो हमारे, यस वो है हमारे 5। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं और नंबर ऑफ कार्टन कितने हैं। चलो नंबर ऑफ कार्टन टोटल कुल मिलाकर कितने हैं, यस वो है हमारे 8। सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ये होंगे हमारे 5 × 8। तो ए 5 को 8 टाइम्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब 8 टाइम्स 5 को बोलना है। 5 1 जार 1, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 5 7 जार 35, 5 8 जार 40. So yes, our answer is the 40 apples. So our answer is the 40 apples. Yes, no? So it's so easy, no? Yes. मल्टीप्लिकेशन आपको तभी ही ईजी जाती है स्टूडेंट्स जब आप क्या करते हो, अच्छे से टेबल्स को बाय हार्ट करते हो। तो इसलिए ध्यान में ये बात रखनी है कि घर में आपके हमेशा आपके घर के स्टडी रूम के वॉल के ऊपर टेबल्स का चार्ट चाहिए। और हर दिन सुबह सुबह आप भगवान के दर्शन लेते हो ना, तो भगवान के दर्शन लेने के तुरंत बाद ही आपको ये सारे टेबल्स भी क्या करने हैं, बोलने ही हैं। हर दिन अगर आप टेबल बोलोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन हमेशा के लिए ईजी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय फॉर नाउ। आगे का जो पार्ट्स है वो पार्ट हम बाद में सॉल्व करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।